गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई, जहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर के साथ विच इज़ ऑन प्लेटो एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम प्लेटो की थर्ड पार्ट ऑफ द बुक की बात करेंगे विच इज़ द फिजिक्स. नाउ प्लेटो ने खुद ने कोई ऐसे डिमार्केशन नहीं किया है अपने वर्क्स में, बट इट इज़ अस जिसने इसको डिमार्केट किया है इनटू डायलेक्टिक, इनटू physics and stuff. So now we will be talking about the third part of the book. So we are following currently a critical history of Greek philosophy by Walter Terence Dace. Now physics or the theory of existence, हमने previous videos में theory of ideas को बहुत detail में we have discussed it, उसके criticisms को भी we have discussed in detail. Dialectic is the theory of reality, physics the theory of existence, dialectic of that which lies behind things as they ground, physics are the things which are thus grounded. तो जो हम सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज जो कि रियलिटी के साथ हम अटैच करते हैं विच इज़ द थ्योरी ऑफ रियलिटी. अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज़ related to these sensory objects. That is to say, physics is concerned with phenomena and appearances, things which exist in space and time. Ideas non-spatial होते हैं, they are timeless, they are not concerned with time, not concerned with space. उसके opposition में आता है physics, material things जो कि space and time exist करते हैं, और इसके बीच में भी distinction we have discussed thoroughly in the previous videos. Things of this kind are both corporeal and incorporeal. Physics falls therefore into two parts: doctrine of outward corporeality, the world which is in its incorporeal essence, the world soul, and the doctrine of the incorporeal soul of man. तो physics भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. पहला है the world of corporeal things, something which perishes over time, जो खत्म हो जाती है, material things, and then the world of incorporeal like the soul. अब doctrine of the world हम सबसे पहले बात कर रहे हैं. If in the dialectic Plato has given an account of the nature of the first principle and ground of all things, the problem now arises of explaining how the actual universe of things arises of that ground. तो अब theory of ideas में से जो absolute reality है उसमें appearances कैसे बाहर निकल के आती है, world कैसे arise होता है, first principle जो कि theory of ideas Plato का था उसमें से. Ideas being the absolute reality, how does the world of sense and in general the existence universe arise out of the ideas? Faced with this problem, the system of Plato broke down. The things of sense are, as we told, copies or imitations of the ideas. तो प्लेटो बोलते हैं कि जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, जो बेसिकली सेंसरी ऑब्जेक्ट या फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, दे आर कॉपीज, इमिटेशंस, जो कि आइडियाज हैं उनकी इमिटेशंस, उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं. वो पार्टिसिपेट करते हैं आइडियाज में. जैसे जितनी भी वाइट थिंग्स हैं उन सभी का एक कॉमन आइडिया है, द आइडिया ऑफ वाइटनेस. सो फार सो गुड, बट वाई शुड देयर बी एनी कॉपीज ऑफ द आइडियाज? वाई शुड द आइडियाज गिव राइज टू कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्रिटिसिज्म आता है कि आइडियाज खुद की कॉपीज को क्यों बर्थ देंगे, और ये कैसे वाई शुड द आइडियाज एंड हाउ इज द प्रोडक्शन ऑफ दीज कॉपीज अफेक्टेड? टू दीज क्वेश्चंस प्लेटो हैज नो आंसर, and he therefore has recourse to the use of myths. Poetic description here takes the place of scientific explanation. तो theory of ideas में बहुत एक scientific approach प्लेटो ने लिया है theory of ideas को explain करने के लिए. लेकिन जब ये transition हो रहा है from the theory of ideas to the theory of existence, ये transition जो है यहाँ पर आके प्लेटो का system थोड़ा सा faulty हो जाता है और scientific explanation की जगह poetic description की तरह आ जाता है. This poetic description of the origin of the world is to be found in the Timaeus. We have seen that the ideas are absolute being and the things of sense are half real and half unreal. हम already previous chapters में काफी detail में discuss कर चुके हैं. They are partly real because they participate in being. They are partly unreal because they participate in non-being. There must be therefore a principle of absolute not being. This, in Plato's opinion, is matter. तो ये सब हम बहुत थॉरली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, थ्योरी ऑफ आइडियाज डायलेक्टिक वाले पार्ट में. अब बात होती है प्रिंसिपल ऑफ नॉट बीइंग. प्रिंसिपल ऑफ बीइंग तो हमने देख लिया जो कि है आइडियाज. अब प्रिंसिपल ऑफ नॉट बीइंग में हमारे पास आता है मैटर. This, in Plato's opinion, is matter. Things of sense are copies of the ideas fashioned out of or stamped upon matter, but Plato does not understand by matter what we in modern times understand by it. Matter in our sense is always some particular kind of matter. It is brass or wood, iron or stone. It is matter which is determinate character and quality, but the possession of specific character means that it is matter with the copy of ideas already stamped upon it. Since iron exists in great quantities in the world, and there is a common element in all various species of iron by virtue of which all are classed together, there must be a concept of iron. There is therefore an idea of iron in the world of ideas, and the iron which we find in the earth must be matter which is already formed into a copy of this idea.
तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है मैटर को लेकर और प्लेटो का जो अंडरस्टैंडिंग है मैटर को लेकर वो बहुत डिफरेंट है। हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर हमेशा होता है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो हमें पता है कि आयरन की बहुत क्वांटिटीज है, वो सेपरेटेड है एक दूसरे से। थोड़ा आयरन कहाँ पर है, थोड़ा आयरन कहाँ पर है, वो किस फॉर्म में है, हम उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जितना भी आयरन है वर्ल्ड में उसका एक कॉमन आइडिया है, उसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन है, कॉमन है, विच इज देयर इन एवरीथिंग बाय वर्च्यू विच आर ऑल क्लास टुगेदर। तो ये जो कॉमन आइडिया, कॉमन कॉन्सेप्ट हमारे पास आयरन का है, इसके कारण जितना भी आयरन, जितना भी मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है हम उसको एक साथ क्लास करते हैं, वी कॉल इट आयरन एज अ कॉमन एलिमेंट। So it participates in the idea of iron. The same remarks apply to any other particular kind of matter. In fact, all the specific characters and features of matter as we know it are due to the operation of the idea. So जितनी भी particular qualities हम किसी भी matter को देखते हैं वो सब ideas के कारण है, क्योंकि एक idea of iron जो है it has a common thing, क्योंकि हर iron के matter में हर iron के particle में idea of iron exist करता है, इसलिए सारे iron particles में common element है, that is the idea of iron. But to be absolutely without any qualities, to be simply nothing at all. अब ये idea जो है it must be absolutely without quality, featureless and formless. But to be absolutely without anything is to be simply nothing at all. This matter is therefore, as Plato says, absolute not being. Serrer conjectures probably right that what Plato meant was simply empty space in existent not being, and it is totally indeterminate and formless. It accords with this view that Plato adopted the Pythagorean tenet that the different qualities of material substances are due to their smallest particles being regular geometrical figures limited out of the unlimited. तो जब हम बात करते हैं, जैसे हम आइडिया की बात कर रहे हैं, द आइडिया ऑफ समथिंग, तो आइडिया की खुद की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है। तो ये जो हम आइडिया की बात कर रहे हैं ना, अगर उसकी कोई क्वालिटी, क्वांटिटी, फॉर्म, शेप, साइज नहीं, देन इट इज सिंपली नथिंग। और सिंपली नथिंग मतलब एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस इन एग्जिस्टेंट not being, and it is totally indeterminate and formless. It accords with this view that Plato adopted the Pythagorean tenet that the different qualities of material substances are due to their smallest particles being regular geometrical figures and limited out of the unlimited, and that is out of space. Thus earth is composed of cubes, that is to say empty space when bound into cubes. The limiting of the unlimited becomes earth. The smallest particles of fire are tetrahedra of air, octahedra of water, icosahedra. So basically what Plato is trying to explain is कि जो भी हमारे पास materials आते हैं उनकी जो हमारे पास quality है is simply that उनके जो smallest particles हैं उसके कारण, how the smallest particles are arranged या what are the qualities of the smallest particles, उसके कारण bigger elements की qualities हमारे पास निकल कर आती है। जैसे कि fire. Now why is fire different from water? Is because fire के smallest particles are tetrahedra whereas air के smallest particles are octahedra. क्योंकि एयर एंड फायर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग है, इसलिए एयर और फायर की क्वालिटीज एक दूसरे से अलग है। तो एयर एंड फायर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उन स्मॉलर पार्टिकल्स की क्वालिटीज एक दूसरे से अलग है, जिसके कारण उन बिगर मटेरियल्स की क्वालिटी एक दूसरे से अलग है। So we have then on the one hand the world of ideas and the other matter, an absolutely formless chaotic mass. By impressing the images of the ideas upon this mass, things arise, that is to say the specific objects of sense. They thus participate both in being and in not being. But how is this mixing of being and not being brought about? How do the ideas come to have their images stand upon after? It is at this point that we enter the region of myth. तो ये जो हम देखेंगे कि फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन जो कि साइंटिफिक होना चाहिए इज नॉट वेरी साइंटिफिक इन इट्स एक्सप्लेनेशन. Up to this point, Plato is certainly to be taken literally. He of course believed in the reality of the world of ideas, and he no doubt also believed in the principle of matter. And he thought that the objects of sense are to be explained as copies of ideas impressed upon matter. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे theory of ideas या ideas are to be considered as reality, absolutely real, eternal, universal, and unchangeable,
एंड वी हैव टू टेक प्लेटो लिटरली. लेकिन इसके बाद प्लेटो की लैंग्वेज बहुत मिथिकल हो जाती है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट टेक हिम लिटरली. वी हैव टू स्क्रैप द मीनिंग आउट ऑफ इट. अब if the ideas are the absolute ground of all things, then the copying process must be done by the ideas themselves. तो जो बोल रहा है प्लेटो दैट द फिजिकल वर्ल्ड की चीजें आर द कॉपीज ऑफ आइडियाज. तो ये जो कॉपीइंग की प्रोसेस है, which is which is that the thing is a copy of the idea, this process has to be taken up by ideas themselves. They must themselves be the principles for the production of things. But this is for Plato impossible, for productions involves change. And if the ideas produce things, the ideas must in the process undergo change. But Plato ने पहले ही बोल दिया कि ideas are unchangeable. हम क्या बात करें कि ideas जो है उनकी copies are the material things. Sensory world की जितनी चीजें हैं are the copies of the ideas. Now, if the ideas themselves are producing copies, तो ideas को कहीं ना कहीं change होना पड़ेगा, तभी वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन पहले ही प्लेटो हैज एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कि आइडियाज आर अनचेंजेबल. तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है. हेंस द आइडियाज विद इन देमसेल्व्स नो प्रिंसिपल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स बाय दिस मीन्स बिकम्स इम्पॉसिबल. तो जो आइडियाज को कॉपीज जो थिंग्स को हम कॉपीज बोल रहे हैं आइडियाज की, वो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि आइडियाज में अगर चेंज नहीं आ सकता है तो there cannot be copies of it. Then ideas cannot produce anything by themselves. Plato can only imagine that things are produced by a world former or designer who, like a human artist, fashions the plastic matter into images of the ideas. तो अब यहाँ पे आ गया कि कोई ऐसा फॉर्म है, फिगर है, जो कि आइडियाज की जैसे कॉपीज बना रहा है, नॉट फेक कॉपीज, बट जैसे कि जो आइडियाज है उसको मैटर में पुट करके आइडियाज की कॉपी बना रहा है. God, the creator, the world designer, finds beside him on the one hand the ideas, on the other formless matter. तो अब गॉड को एक मिथिकल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया है प्लेटो ने. एक तरफ उसके पास आइडियाज है, दूसरी तरफ फॉर्मलेस मैटर है, लंप ऑफ मैटर, जैसे हम बोल सकते हैं कि उस मैटर का कोई साइज, शेप, फॉर्म कुछ भी नहीं है. अब गॉड आइडिया को देख रहे हैं, देन वो मैटर ले रहे हैं, फिर मैटर को उस आइडिया की कॉपी बना रहे हैं, उसके आइडिया के उसमें पुट कर रहे हैं. First, he creates the world soul. This is incorporeal but occupies space. He spreads it out like a huge net in empty space. तो सबसे पहले वर्ल्ड सोल क्रिएट हो रहा है, और वर्ल्ड सोल जो है वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड किया जाता है, जैसे कोई नेट पूरी बिछा दी जाती है खाली जगह में, ऐसे वर्ल्ड सोल पूरी स्प्रेड की जाती है. He bisects it and bends the two halves into an inner and outer circle. These circles being destined to become the spheres of the planets and stars respectively. तो वो नेट को बेसिकली बेंड करके then they make it into stars and planets and stuff. He takes matter and binds it into the 4 elements, and these elements he builds into the empty framework of the world soul. तो मैटर को लेके वर्ल्ड सोल क्रिएट करने के बाद, वर्ल्ड सोल को पूरे यूनिवर्स एम्प्टी स्पेस में स्प्रेड करने के बाद, मैटर को लेके उसको 4 डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड फिर उन एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं दोनों वर्ल्ड सोल की स्फीयर्स के बीच में, जो हमने 2 इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल वर्ल्ड स्फीयर की बनाया, उसके बीच में उसको प्लेस कर दिया जाता है. जब ये हो जाता है तो यूनिवर्स क्रिएट हो गया है, 4 एलिमेंट्स बन गए हैं, उसको वर्ल्ड सोल के बीच में प्लेस कर दिया है. The rest of the time is occupied with the details of Plato's idea of astronomy and physical science. ये बहुत worthless, I wouldn't use the word worthless as the author has used here, but worthless in the sense that they are very poetical. कोई scientific explanation नहीं है, like a poem they go on, tedious है, exhaustive है. But we may mention that Plato of course regarded the earth as the center of the world. The stars, which are divine beings, revolve around it. तो अर्थ को सेंटर में डाल के स्टार्स को आसपास सब रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सर्कल्स में मूव कर रहे हैं. सर्कल इज द परफेक्ट फिगर, इसी वजह से सर्कल्स में मूव कर रहे हैं स्टार्स, क्योंकि वो डिवाइन है, तो वो सिर्फ रीजन के थ्रू गवर्न हो रहे हैं. ओनली बिकॉज ऑफ रीजन दे आर वर्किंग एंड दे आर गवर्न बाय रीजन, और इसीलिए उनका मूवमेंट भी सर्कुलर होना पड़ेगा, विच हैज टू बी परफेक्ट, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो है मोशन ऑफ रीजन. तो इस तरीके से प्लेटो अपना एक फिजिकल यूनिवर्स हमें एक्सप्लेन करा है, जो कि हम ऑलरेडी हेराक्लाइटस एंड थेलीज एंड एनाक्सिमेंडर एंड इनके केस में हम कैसे फिजिकल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन का एक अटेम्प्ट देख चुके हैं. The above account of the origin of the world is merely myth, and Plato knows that it is myth. What he apparently did believe in, however, is the existence of the world soul.
तो वर्ल्ड सोल के एग्जिस्टेंस में प्लेटो बिलीव करता है कि हाउ एवरीथिंग, कैसे सोल जो है वो पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से बाइंड करे हुए है. एवरीथिंग हैज अ सोल इन इट. And a few words upon this subject are necessary. The soul in Plato's system is the mediator between the world of ideas and the world of sense. अब जो world of ideas है, which are absolute reality being, and जो world of sense है, which are not being and unreality, उन दोनों के बीच का mediator है soul. जैसे कि soul connect कर रहा है, soul is putting material things and connecting it. Soul जब put into material things, it is connecting it with the ideas. Like the former, the incorporeal, the immortal, like the latter, it occupies space. So कैसे अब जो soul है वो incorporeal है, it is not made up of matter, वो immortal है, it will not perish. लेकिन soul जो है वो space occupy कर रहा है. तो it is a link, idea और sensory object के बीच का एक लिंक है. हम आइडियाज को बोल रहे हैं वो एटर्नल है, वो इमॉर्टल है, वो इनकॉर्पोरियल है. उसी तरीके से सोल भी इनकॉर्पोरियल है, वो इमॉर्टल है. लेकिन दूसरी तरफ हम आइडियाज को बोल रहे हैं वो नॉन स्पेशियल है, लेकिन सोल स्पेशियल है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है. प्लेटो थॉट दैट देयर मस्ट बी अ सोल इन द वर्ल्ड टू अकाउंट फॉर द रैशनल बिहेवियर ऑफ थिंग्स. अब ये सब रीजन के थ्रू ही गवर्न हो रहा है. एंड प्लेटो ऐसा इसलिए मानते थे कि जितना भी बिहेवियर वर्ल्ड में हो रहा है उसके लिए देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रैशनैलिटी, उसके अंदर सोल होना पड़ेगा. एंड द रीजन विच गवर्न्स एंड डायरेक्ट्स द वर्ल्ड ड्वेल्स इन द वर्ल्ड सोल. तो ये वर्ल्ड सोल के अंदर ही पूरा रीजन है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डायरेक्ट कर रहा है और गवर्न कर रहा है. जस्ट एज द ह्यूमन सोल इज द कॉज ऑफ द इमोशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द कॉस्मोस इज अ लिविंग बीइंग. तो जैसे कि हर ह्यूमन के अंदर एक सोल है. अब ह्यूमन बॉडी विदाउट द सोल इज नथिंग. वो बस उसमें कोई एक्शन नहीं हो सकता, कोई रिएक्शन मोमेंटम कुछ नहीं हो सकता. सिमिलरली जो वर्ल्ड सोल है उसी वजह से वर्ल्ड की चीजें हो रही है, मूवमेंट हो रहा है. सो वर्ल्ड सोल इज बेसिकली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड द वर्किंग ऑफ द एंड द मोशन ऑफ द यूनिवर्स. कॉज कर रहा है वो यूनिवर्स के मोशन को. जैसे कि ह्यूमन सोल एंड ह्यूमन बॉडी का कनेक्शन, द मोमेंट सोल ह्यूमन बॉडी से निकल जाती है, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मूव, कैन नॉट वर्क. सिमिलरली वर्ल्ड सोल है जो कि पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, तो इट इज बेसिकली मेकिंग एवरीथिंग वर्क. जैसे नेचर में जितनी चीजें हो रही है, यूनिवर्स में जितनी चीजें हो रही है, एवरीथिंग. अब हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ द ह्यूमन सोल. नाउ प्लेटो ह्यूमन सोल के बारे में क्या बोल रहा है. वर्ल्ड सोल का हमने देख लिया. ह्यूमन सोल जो है वो वर्ल्ड सोल के जैसे ही है, वो बॉडीली मूवमेंट्स का कॉज है और इसी के अंदर ह्यूमन सोल के अंदर ही ह्यूमन रीजन डेवलप करता है. जैसे कि वर्ल्ड सोल के अंदर जो रैशनैलिटी है, जो रीजन है जिससे पूरा यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, उसी तरीके से ह्यूमन सोल के अंदर ह्यूमन रीजन है. तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ सेंस दोनों के साथ कनेक्शन है ह्यूमन सोल का. जैसे वर्ल्ड सोल का भी ये सेम चीजें ह्यूमन सोल पे इम्प्लीकेट हो रही है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच वन पार्ट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू. तो ह्यूमन सोल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और ह्यूमन सोल के दो पार्ट्स को वापस से हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे हाईएस्ट पार्ट है रीजन, जो कि आइडियाज को अंडरस्टैंड करता है, आइडियाज के साथ वर्क करता है. वो सिंपल है, वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं. All destruction of things means the sundering of their parts, but the rational part of the soul being simple has no parts. अब हम जब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की, तो डिस्ट्रक्शन क्या होता है. डिस्ट्रक्शन मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को जब हम फर्दर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया. लेकिन क्योंकि ह्यूमन सोल के अंदर जो रीजन है, ह्यूमन सोल का जो पार्ट है जो कि रीजन है, क्योंकि वो रीजन सिंपल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उस रीजन को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता है. तो वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो इमॉर्टल है. अब जो इरैशनल पार्ट है सोल का वो है मॉर्टल. उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है एंड इज सब डिवाइडेड इनटू अ नोबल एंड इग्नोबल हाफ. अब जो मॉर्टल पार्ट है उसका विच इज द इरैशनल पार्ट, सोल है. सोल का रैशनल पार्ट विच इज रीजन, जो कि इमॉर्टल है, जो कि अनडिविजिबल है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, सिंपल है. सोल का दूसरा पार्ट विच इज इरैशनल, अनरीजनेबल, जो कि मॉर्टल है, जिसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं नोबल और इग्नोबल में. अब जो नोबल है उसमें बिलोंग करता है करेज, ऑनर, लव, जो कि नोबल इमोशंस है, गुडनेस, राइटियसनेस, डिग्निटी, ऑल ऑफ दैट. इग्नोबल पोर्शन जो है इट बिलोंग्स टू द सेंसुअस एपेटाइट्स, जैसे कि द डिजायर्स, greed and appetites and all of these, jealousy,
नोबल हाफ जो है उसका कहीं ना कहीं रीजन के साथ एक कनेक्शन है, रीजन के साथ एफिनिटी है, रीजन के साथ वर्क करता है, एंड दैट इज वाई इट हैज एन इंस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज नोबल एंड व्हाट इज ग्रेट. लेकिन सिर्फ इंस्टिंक्ट के वजह से वो रैशनल नहीं है. जो नोबल पार्ट है, इट इज नॉट, we cannot say that it is rational, but yes, it has in sense a relation with the rational, with the reason जो कि हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ समझे, if we see, this is the human soul which is divided into two parts. This is the immortal part, reasonable part. This is the mortal part, the irrational part. irrational part को हमने डिवाइड किया noble, ignoble. Now somewhere this noble is connected with the rational, but it is not completely rational. एक connection है, but ये completely rational नहीं है. Now this noble has all the great and noble things like goodness, righteousness, dignity, honor, love and all. Ignoble में the ignoble qualities, the appetites, desires and stuff. So this is how human soul को Plato explain करता है. The seat of reason is the head of the noble half of the lower soul, the breast of the ignoble half, the lower part of the body. Now this is also again very important कि reason is in the head, you know, kind of like mind. Noble half of the lower soul, the breast, like the heart, and the ignoble half, the lower part of the body, like our sexual organs. Man alone possesses the three parts of the soul. Animal के पास सिर्फ दो parts होते हैं, plant के पास सिर्फ एक part होता है. तो जो ह्यूमन सोल है सिर्फ उसके पास तीन पार्ट्स होते हैं, जो कि है रीजन, नोबल एंड द इग्नोबल. एनिमल्स के पास सिर्फ दो पार्ट होते हैं. नाउ लेट्स सी इफ यू कैन गेस, कमेंट एंड लेट मी नो कि एनिमल्स के पास कौन से दो पार्ट्स होते हैं एंड प्लांट्स के पास होता है एपेटिटिव सोल. तो प्लांट्स के पास नोबल हाफ भी नहीं होता है एंड रीजन भी नहीं होता है. एनिमल्स के पास let's see what are the two parts which you think animals के पास होते हैं. What distinguishes man from the lower orders of creation is thus that he alone possesses reason. So of course you've guessed it right कि animals के पास सिर्फ noble and ignoble half होता है, उनके पास reason नहीं होता. और plants के पास तो noble half भी नहीं होता, उनके पास सिर्फ ignoble half होता है. Plant जो है वो doctrine of immortality को plant connects the doctrine of the immortality of the rational soul with the theory of ideas by means of the doctrines of recollection, transmigration. So all knowledge is recollection of what is experienced by the soul in its disembodied state before birth. तो जो भी नॉलेज है वो बेसिकली क्यों है कि जो कि सोल ने बर्थ से पहले, कि सोल बॉडी में एंटर होने से पहले जो कि एक्सपीरियंस किया है वही उसका रिकलेक्शन है नॉलेज. अब जब हम यहाँ पर नॉलेज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हम यहाँ नॉलेज की बात करते हैं, ये नॉलेज एक स्पेशल सेंस में हम यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ प्लेटो के सेंस में यूज कर रहे हैं. तो नॉट एवरीथिंग दैट वी शुड कॉल नॉलेज इज रिकलेक्शन. द सेंशुअस एलिमेंट इन माई परसेप्शन दैट इज दिस पेपर इज व्हाइट इज नॉट रिकलेक्शन. इट इज बीइंग merely sensuous. It is not in Plato's opinion to be called knowledge. Here is elsewhere he confines the term to rational knowledge, that is to say the knowledge of the ideas, though it is doubtful whether he is wholly consistent with himself in the matter, especially in regard to mathematical knowledge. It must also be noted that this doctrine has nothing in common with the oriental doctrine of the memory of our past lives upon the earth. नाउ जब प्लेटो की हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो नॉलेज, प्लेटो बोलते ज़रूर है कि नॉलेज इज़ अ रिकलेक्शन, कि जो भी नॉलेज हमारे पास है वो बेसिकली सोल ने बॉडी में बर्थ लेने से पहले जो एक्सपीरियंस किया है उसी का रिकलेक्शन बॉडी में आने के बाद वो नॉलेज बन जाता है. लेकिन नॉट एवरी नॉलेज इज़ रिकलेक्शन. जैसे हम बोल रहे हैं कि पेपर इज वाइट, तो ये पेपर इज वाइट कंप्लीट रिकलेक्शन नहीं है. हो सकता है कि हमने पेपर एंड वाइटनेस की क्वालिटीज का रिकलेक्शन किया है कि हाउ डज वाइट सीम, लेकिन उसके इसका मतलब ये नहीं कि इट्स अ कंप्लीट रिकलेक्शन, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें आइडियाज का कॉन्सेप्ट है, दैट द आइडिया ऑफ वाइटनेस एग्जिस्ट करता है. सो
An example of this is to be अब कैसे it is also be to be noted that this doctrine has nothing in common with the Oriental doctrine of the memory of our past lives. जैसे कि जो हम कर्मा की बात करते हैं इंडियन फिलोसफी का, उससे रिलेशन नहीं है. जो नॉलेज ऑफ रिकलेक्शन प्लेटो बात कर रहा है, दिस इज नॉट द कर्मा थ्योरी जो हम इंडियन फिलोसफी में बात करते हैं. जैसे कि बुद्धिस्ट जटाकास में, जहाँ पर बुद्धा रिलेट करता है फ्रॉम मेमोरी मैनी थिंग्स दैट हैपेंड टू हिम इन द बॉडी प्रीवियस बर्थ में. दिस इज नॉट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर कि रिकलेक्शन में कि पास्ट लाइफ का रिकलेक्शन बर्थ होने से पहले जो सोल के साथ हुआ वो रिकलेक्ट कर रहा है. दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. प्लेटो का डॉक्ट्रीन बहुत अलग है. इट्स नॉट द कर्मा थ्योरी या पुनर्जन्म, जो कि अगर हम प्रॉपरली अगर इसको बोले उसकी बात नहीं हो रही है. इट ओनली रिफर्स टू द रिकलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोल. और वो भी कब? जब सोल किसी भी बॉडी में नहीं था, जब सोल किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो डिसएम्बॉडीड था. सोल एग्जिस्ट कर रहा था उस स्टेट में जो उसने एक्सपीरियंस लिया, उसका रिकलेक्शन की बात की जा रही है, जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में सोल का एक्सपीरियंस था. तो जब हम बात कर रहे हैं कि द पेपर इज वाइट, तो हमारे पास ये जो आइडिया आया वाइटनेस का, दिस आइडिया इज बेसिकली अ रिकलेक्शन जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज ने सोल ने एक्सपीरियंस किया था कि वाइटनेस का आइडिया क्या है. तो इफ यू ट्राई टू डिफाइन वाइट, हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे उसके प्योरेस्ट सेंस में. हम वाइट को डिफाइन अलग अलग तरीके से करेंगे, उसकी अलग क्वालिटीज की तरह से करेंगे कि ओके इट इज नॉट रेड, नॉट ब्लैक, नॉट ब्लू, एंड इट इज लाइट या डार्क, या इट गिव्स पीस एंड व्हाटएवर. तो ये सारी मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है उस आइडिया की. बट हाउ डू वी नो अबाउट दिस आइडिया ऑफ वाइटनेस? ये कैसे कि जब सोल उसके डिसएम्बॉडीड स्टेट में थी, जब सोल किसी बॉडी में रिसाइड नहीं कर रही थी, और जब वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में एग्जिस्ट कर रही थी, तब उसने जो वाइटनेस को एक्सपीरियंस किया. तो सेंसरी वर्ल्ड में आने के बाद दैट इज हाउ द रिकलेक्शन हैपेंस. The reasons assigned by Plato for believing in this doctrine may be reduced to two. Firstly, knowledge of the ideas cannot be derived from the senses because the idea is never pure in its sensuous manifestation but always mixed. अब इसके दो रीजन क्यों ऐसा बोल रहा है प्लेटो कि इट इज अ रिकलेक्शन पास्ट, नॉट पास्ट बट व्हेन इट वाज डिसएम्बॉडीड एंड इट वाज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. तो पहला, आइडियाज को हम प्योर सेंसेस के बेसिस पर नहीं जज कर सकते, right? And the one beauty, for example, is only found in experience mixed with the ugly. तो ideas pure sensations नहीं है, ideas mixed है. हम जैसे आइडिया ऑफ ब्यूटी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम आइडिया ऑफ अगलीनेस को नहीं समझ सकते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्यूटीफुल रोज देख रहे हो, तो यू आर ओनली सीइंग ब्यूटी. हम सिर्फ ब्यूटीफुल या आइडिया ऑफ ब्यूटी को देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आइडिया ऑफ अगलीनेस प्री एग्जिस्ट कर रहा है, वी कैन से दैट द रोज इज ब्यूटिफुल. तो हमारे पास वो आइडिया मिक्स्ड है. Second reason is, if the doctrine of recollection is itself fantastic, this, the chief reason upon which Plato bases it, is interesting and important. He pointed out that mathematical knowledge seems to be innate in the mind. कि mathematical knowledge जो है वो हमारे खुद की instinct है, innate है. वो ना तो हमें instruction से मिली है, ना experience से मिली है. Plato came within an ace of discovering what in modern times is called the distinction between necessary and contingent knowledge, जो कि given by Immanuel Kant. Necessary और contingent knowledge, that how necessary knowledge is universal in nature, हर जगह वो same apply करती है. Contingent knowledge is derived from experience, it changes with time, with space, and there is a whole lot into necessary and contingent knowledge, जो कि we have discussed some part of it before when we were studying the categorical imperative of Immanuel Kant. So प्लेटो का जो ये है, when it comes to mathematical knowledge, प्लेटो एक्सप्लेन करता है मैथमेटिकल नॉलेज को, that is one of the most far reaching, जो कि मॉडर्न टाइम से सबसे ज़्यादा रिलेट करता है और सबसे ज़्यादा क्लोज है. कैरेक्टर ऑफ नेसेसिटी अटैचेस टू रैशनल नॉलेज बट नॉट टू सेंचुअस. तो जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी नॉलेज है,
वो रैशनैलिटी से मिलती है, रीज़न से मिलती है, इसलिए वो यूनिवर्सल है। वो किसी भी स्टेट में किसी भी टाइम में चेंज नहीं होगी, क्योंकि रीज़न रिमेन्स। रीज़न हमेशा एक जैसे रहता है। रीज़न हर स्टेट में, हर टाइम में, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंस में वैसे ही एक्ट करेगा। अगर एक रीजनेबल माइंड है तो एक रीजनेबल माइंड हमेशा सेम, नॉट सेम सोल्यूशन बट सिमिलर सोल्यूशन, मतलब एक रीजनेबल सोल्यूशन ही देगा। दूसरी तरफ है कंटिंजेंट नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द सेंसेस एंड विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले इस डिस्टिंक्शन को बताने के लिए, सच अ proposition as that 2 and 2 make 4. This does not mean merely that as a matter of fact every every other two objects with which we have tried the experiment make 4. It is not merely a fact, it is a necessity. It is not merely that 2 and 2 do make 4, but they must make 4. तो 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं। अब ये हमने एक्सपीरियंस से नहीं पता करा है, हमने दुनिया की हर 2 और 2 चीज को मिलाकर नहीं देखा कि वो 4 बना रहा है कि नहीं, बट ये एक नेसेसरी फैक्ट है, एक नेसेसरी नॉलेज है कि 2 और 2 को 4 ही होना पड़ेगा। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इट इज इनकंसीवेबल दैट दे शुड नॉट। ऐसा कोई भी केस, कोई भी सिचुएशन नहीं होगा जहाँ 2 and 2 डू नॉट मेक 4. वी हैव नॉट गॉट टू गो एंड सी वेदर इन ईच न्यू केस दे डू सो। हमें जाने की जरूरत भी नहीं है और हमने ऐसा करा भी नहीं है, हर केस में जाके देखा नहीं है। जैसे कि दूसरी तरफ अगर हमें कंटिंजेंट नॉलेज का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल ऑल बैचलर्स आर हैप्पी, ये कंटिंजेंट नॉलेज है। दिस इज ओनली थ्रू एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है। अब जैसे इट इज क्वाइट अदरवाइज विद सच अ प्रपोजिशन एज गोल्ड इज येलो, देयर इज नो नेसेसिटी अबाउट इट, इट इज merely a fact. For all anybody can see to the contrary, it might just as well be blue. There is nothing inconceivable about its being blue as there is about 2 and 2 making 5. Of course, that gold is yellow is no doubt a mechanical necessity, that is, it is determined by causes in that sense, could not be otherwise, but it is not a logical necessity. तो यहाँ पर बहुत एक माइन्यूट एंड फैब्रिकेटेड डिफरेंस है, बहुत ही इंट्रिकेट डिफरेंस है, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, एंड इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिफरेंस कि 2 plus 2 equals to 4 and gold is yellow. Both are facts. But 2 plus 2 equal to 4 एक logical necessity है, whereas gold is yellow एक mechanical necessity है. It is not a logical necessity. It is not a necessity in the first place. Gold is yellow एक fact है. Gold blue नहीं होगा, लेकिन gold blue हो सकता है, या गोल्ड का ब्लू होना, गोल्ड का येलो होना इज नॉट अ मस्ट। ऐसा एज इन द केस ऑफ 2 plus 2, 2 plus 2 हैज टू बी 4. इट कैन नॉट बी 5, इट कैन नॉट बी 3, इट विल बी 4, इट हैज टू बी 4. 2 plus 2 इज 4. तो जब हम ब्लू गोल्ड को इमेजिन करते हैं तो कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एनी other proposition is in mathematics possesses the same necessity. तो जितने भी mathematical propositions है वो necessary knowledge होती है, and ये बहुत रेजोनेट कर रहा है विद इमैनुअल कांट, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेमेस्टर्स के कोर्स में, दिस इज बेसिकली वी आर डूइंग अदरवाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं हम फॉर extra knowledge and for if interest which is not a part of a curriculum. दिस इज समथिंग, लेकिन हम जो फिलोसफी ऑनर्स के करिकुलम में डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम इमैनुअल कांट की नेसेसरी एंड कंटिंजेंट नॉलेज को कहीं ना कहीं वी हैव टच्ड अपॉन द टॉपिक. बट दैट Socrates is standing is not a necessary truth. He might just as well be sitting. Now Socrates is standing, जैसे it is a fact है कि let's say instead of Socrates, to make it less confusing, let's say Rahul is standing. Now Rahul is standing is a fact, but it is not a necessary truth. Rahul हो सकता है बैठ भी जाए. Since a mathematical proposition is necessarily true, its truth is known without verification by experience. तो necessary knowledge का verification, justification की जरूरत नहीं होती. They are as it is. They don't have to be proved or by experience or anything. Having proved the proposition about the isosceles triangle, we do not go about measuring the angles of triangular objects to make sure there is no exception. We know it without any experience at all. तो एक बार हमने isosceles triangle को prove कर दिया, तो every time we won't measure दोनों angles whether they are equal or not. Once that we have proven it, it remains, and we accept it as it is.
And if we were sufficiently clever, we might even evolve mathematical knowledge out of the resources of our own minds without its being told us by any teacher. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि मैथमेटिकल नॉलेज को हमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे माइंड में प्रेजेंट है. तो जो टीचर करता है वो मैथमेटिकल नॉलेज हमें देता या सिखाता नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को ब्रिंग आउट करता है, वो बाहर लेकर आता है, सो दैट वी रियलाइज, हमें अवेयरनेस हो कि हम उस नॉलेज को ऑलरेडी जानते हैं. This is what is meant when it is said कि mathematical knowledge is innate in our mind, कि mathematical knowledge हमें पहले से पता है, वो already exist कर रहा है हमारे mind में, उसको सिर्फ हम aware हो रहे हैं by a teacher, by the help of a teacher. Caesar was stabbed by Brutus is a fact which no amount of cleverness could ever reveal to me. Caesar was stabbed by Brutus. Now ये एक fact है, लेकिन ये mind cannot reveal. This information can only be known when somebody tells it to us. सिर्फ gold is yellow, man is standing, ये facts हैं, लेकिन ये facts सिर्फ हमें तभी पता चलेंगे जब कोई हमें बताए. जब तक कोई इन facts को हमें नहीं बताएगा, हम नहीं पता कर पाएंगे कि ये facts हैं. लेकिन मैथमेटिकल नॉलेज को हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. With time, with precaution, we can automatically come to know of them. It might be otherwise, and therefore I must be told whether it is true or not. But the proposition about the isosceles triangle is necessary, and therefore I can see that it must be true without being told. Now, Plato did not clearly make this distinction between necessary and non-necessary knowledge, but what he did perceive was that mathematical knowledge can be known without either experience or instruction. बहुत clearly कि हमें मैथमेटिकल नॉलेज को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लाइन या पॉइंट या जितनी भी ज्योमेट्रिकल ट्रूथ्स जो हमें पता है. Kant afterwards gave a less fantastic explanation of these facts, but Plato concluded that such knowledge must be already present in the mind at birth. It must be recollected from a previous existence. It might be answered that though this kind of knowledge is not gained from the experience of the senses, it may be gained from teaching. तो जब पढ़ाया जाता है, what does teaching do is वो उस knowledge को बाहर निकाल कर लेकर आता है. तो हम इस नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं दूसरे माइंड में. वी हैव टू टीच चिल्ड्रन मैथमेटिक्स विच वी शुड नॉट हैव टू डू इफ दे वर ऑलरेडी इन देयर माइंड्स. यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म आ जाता है. फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स हम पढ़ा सकते हैं, हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैथमेटिकल नॉलेज दे सकता है, या बच्चों को हमें मैथमेटिक्स पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है. एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्रिटिसिज्म जो कि रैशनल नॉलेज या जो सोर्स ऑफ नॉलेज को रैशनैलिटी या जो इनेट नॉलेज थ्योरी है उनको भी फेस करना पड़ता है. He sees it for himself, but if the teacher explains that Lisbon is on the Tigris, the child cannot see that this is true for himself. He must either believe the word of the teacher or he must go and see. In this case, therefore, the knowledge is really imparted from one mind to another. The teacher transfers to the child knowledge which the child does not possess. तो प्लेटो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैथमेटिकल नॉलेज, नॉन मैथमेटिकल नॉलेज के केस में टीचर को चाइल्ड को बताना पड़ेगा, और या तो वो चाइल्ड उसको एक्सेप्ट कर ले एज इट इज क्योंकि टीचर ने बोला, या फिर वो खुद जाके उसको टेस्ट करे. लेकिन मैथमेटिकल नॉलेज के केस में उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसको इम्पार्ट नहीं हो रहा है. इट इज़ सिंपली बीइंग टेकन आउट और टोल्ड बाय द टीचर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द चाइल्ड्स माइंड. और प्रोसेस ऑफ टीचिंग सिर्फ और सिर्फ उसको अवेयर कराता है चाइल्ड को कि उसे इस नॉलेज के बारे में पता है. दिस इज वॉट इज मेंट by saying that the child sees it for himself. In the Meno, Plato attempts to give an experimental proof of the doctrine of recollection. तो Meno में basically what happens is that Plato questions a person and just slave boy जिसका नाम Plato है, and वो slave boy है, and because the boy is a slave, तो of course उस स्लेव के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, मैथमेटिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. व्हाट सोक्रेटिस, सॉरी नॉट प्लेटो, तो मेनो में सोक्रेटिस अगेन बाय हिज मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग वो प्रूफ करते हैं कि कैसे सोक्रेटिस बिना उस बॉय को, मीनो को कुछ बताए, उससे वो मैथमेटिकल नॉलेज निकलवा लेता है. तो थ्योरम अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर वो बॉय बता देता है. The
पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज सोक्रेटिस उसे कुछ बताता नहीं है मेनो को, लेकिन जस्ट बाय अ प्रोसेस धीरे धीरे करके बिना सोक्रेटिस के डायरेक्टली उसे कुछ भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं, बिना सोक्रेटिस के मेनो को कुछ भी बताए मेनो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बता देता है. सो दिस इज दैट. वो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है और बॉय सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देता है, और क्वेश्चन के आंसर से ही विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम सोक्रेटिस he tells the properties of square. And it is not because of experience or because of teaching of Socrates, क्योंकि Socrates ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं. It is because मेनो को वो properties already पता थी, because as you know stated and claimed by Plato and Socrates कि mathematical knowledge was already innate in the mind. सिर्फ teacher उसको aware करवाता है student को कि you have this knowledge. अब एक क्रिटिसिज्म लेवल कर लेते हैं. इफ नॉलेज इज रिकलेक्शन इट मे बी एज व्हाई इज इट दैट वी डू नॉट रिमेंबर एट वंस. तो ऐसा क्यों कि हमें हर चीज को एक्सप्लेन करवाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, अवेयर कराना पड़ता है, हमें एक बार में सब चीजें याद क्यों नहीं आ जाती है? क्यों फिर मैथमेटिकल नॉलेज जैसे कि आज भी हम अपने क्लास सिस्टम में पढ़ते हैं कि धीरे धीरे करके द लेवल गोज अप एंड अप, because the soul descending from the world of ideas into the body has its knowledge dulled and almost blotted out. तो इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि जब सोल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से निकल के वर्ल्ड ऑफ सेंस में आता है तो उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं छुप जाती है, दब जाती है, भूली जाती है, और इसीलिए हमें वो बहुत दूर हो जाती है, बहुत फेंट हो जाती है हमारी मेमोरी में. इसलिए हमें उस नॉलेज को धीरे धीरे करके याद दिलाना पड़ता है. दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग रिमाइंडेड इज एजुकेशन. ये जो हम मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस को याद दिलाते हैं इसी को एजुकेशन कहते हैं. With this, of course, is connected the doctrine of transmigration, which Plato took, no doubt, from the Pythagoreans. तो ये transmigration of soul and of knowledge जो है वो प्लेटो ने Pythagoreans से लिया था. Now there is another story कि Pythagoreans के ऊपर ये criticism leveled है कि Pythagoreans ने ये transmigration की जो theory ये बुद्धिज्म से adopt की है, जिसकी कोई clear evidence नहीं है. But yeah, most of the details of Plato's doctrine of transmigrations are mere myth. Plato does not mean them seriously, as is shown by the fact that he gives quite different and inconsistent account of these details in different dialogues. अब the very fact कि Plato हर dialogue में उसको अलग तरीके से explain करने की कोशिश करता है, उसका कोई एक consistent comprehensive account नहीं देता है. He talks, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ account दे देता है, कभी कुछ reason दे देता है. So inconsistent, broken सा explanation देता है. What in all probability he did believe, however, may be summarized as follows. The soul is pre-existent as well as immortal. कि soul body के पहले exist कर रही थी, जो कि world of ideas में exist करती है, वो immortal है, उसका natural home है world of ideas, जहाँ पे soul body में enter होने से पहले exist करती है, वहाँ पे वो experiences को collect करती है, वो soul एक blissful pure state में रहती है. जब वो world of sense में आती है तो वो एक body में enter करती है. मैन की डेथ के बाद इफ ही हैज कल्टिवेटेड द नॉलेज ऑफ आइडियाज, फिलोसफी वगैरह, तो सोल वापस से वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में आ जाती है. और जो फिलोसफी एंड वर्ल्ड ऑफ नॉलेज ऑफ आइडियाज वगैरह गेन नहीं करते हैं आफ्टर डेथ, उनको बहुत पनिशमेंट होती है, बहुत पेनल्टीज होती है, एंड वो किसी लोअर बीइंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं. अ मैन मे बिकम अ वुमन, मैन may even if their lives have been utterly sensual pass into the bodies of animal. So यहाँ पर हमें एक बहुत common fact भी पता चलता है कि women were considered lower beings as compared to men by Plato. Now this is not a very controversial topic but a very common belief of those times. Not only of those times, even today many men believe that women जो है वो lower animals हैं, या lower to men है, not animals but lower beings than men है. So एक simple Plato का explanation was not very mind wrenching or anything. Simple explanation था कि कैसे soul blissful state में world of ideas में exist करती है, experiences collect करती है, वो फिर world of sense में आती है, body में enter करती है. अगर उस body ने knowledge of ideas gain करा, philosophy पढ़ा, soul searching करी, तो वो soul वापस से world of ideas में return कर जाती है और वो blissful state में रहती है. अगर नहीं करा तो वो डेथ के बाद पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स को फेस करती है. तो मेनो का जो अकाउंट है जो सोक्रेटिस का दिया गया है वो यही बताता है दैट हाउ
कैसे मैथमेटिकल नॉलेज, यू कैन रीड इट, वो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हाउ सोक्रेटिस ने सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ के मेनो से प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर निकाल दी. तो मेनो को कुछ बताया नहीं सोक्रेटिस ने पहले, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज अ स्लेव, तो उसके पास मैथमेटिक्स को लेकर कोई एजुकेशन नहीं थी. नाउ लेट्स कम टू एथिक्स, द एथिक्स ऑफ द इंडिविजुअल. Just as Plato's theory of knowledge begins with a negative portion designed to refute false theories of what truth is, so does this theory of morals begin with a negative portion indeed intended to refute false theories of what virtue is. तो सबसे पहले प्लेटो जैसे ट्रूथ के बारे में स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने कैसे स्टार्ट करते हैं कि what truth is not, नेगेटिव के साथ. तो सबसे पहले प्लेटो मॉरल्स के बारे में शुरू करता है कि what is not virtue. तो फॉल्स थ्योरीज ऑफ वर्च्यू है उसको रिफ्यूट करते हुए. These two negative departments of Plato's philosophy correspond in every way, as he was then engaged in showing that knowledge is not perception, as Protagoras thought, so he now urges that virtue is not the same as pleasure. वर्च्यू का मतलब प्लेजर नहीं होता है. एक नेगेटिव स्टैंस के साथ प्लेटो शुरू करता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से वो वर्च्यू को बेसिकली क्लियरेंस प्रोवाइड करता है कि वर्च्यू जो नहीं है, जो जैसे कि नॉलेज इज नॉट मियर राइट ओपिनियन, नीदर इज वर्च्यू मियर राइट एक्शन. तो सिर्फ राइट ओपिनियन होना नॉलेज नहीं हो गया. राइट ओपिनियन कैन बी कोइंसिडेंटल, राइट ओपिनियन कैन लीड टू रॉन्ग एक्शंस. तो राइट ओपिनियन का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसी तरीके से सिर्फ राइट एक्शन का मतलब वर्च्यू नहीं है. The propositions that knowledge is perception and that virtue is pleasure are indeed only the same principles applied to different spheres of thought. For the sophist, whatever appeared true to the individual was true for that individual. Sophist का हमने देखा एक बहुत ही individualistic और humanistic perception था कि जो उस human के लिए सच है वही truth बन गया. तो सोफिस्ट जैसे कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को डिनाई करते थे और सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करते थे, विच वी हैव अगेन डिस्कस्ड इन डिटेल सोफिस्ट के चैप्टर में. दिस इज द सेम एज सेइंग दैट नॉलेज इज परसेप्शन. तो जब हम बोल रहे हैं नॉलेज इज परसेप्शन, मतलब कि नाउ परसेप्शन इज डिफरेंट, परसेप्शन इज सब्जेक्टिव. जो हम सेंस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हर ह्यूमन के लिए, हर बीइंग के लिए, हर एनिमल के लिए वुड बी डिफरेंट. तो अगर हम नॉलेज को सिर्फ उस सेंस डेटा के ऊपर बेस कर रहे हैं तो वो सेंस डेटा तो हम हैज टू बी डिफरेंट, और सेंस डेटा को हम ना इम्पार्ट कर सकते हैं ना कम्युनिकेट कर सकते हैं. हर पर्सन का सेंस डेटा एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट, वुड बी इंडिविजुअल. तो द मोमेंट वी से नॉलेज इज परसेप्शन, हमने नॉलेज को सब्जेक्टिव बना दिया और हम सोफिस्ट की साइड के साथ हमने साइड कर लिया. तो सोफिस्ट के लिए जो कि इंडिविजुअल को सही लगा वही सही था. तो सोफिस्ट के लिए कुछ गलत था ही नहीं, इंडिविजुअल को जो सही लगता था वही सही था. तो राइट फॉर ईच मैन टू डू वॉट एवर ही प्लीजेस. वर्च्यू इज डिफाइंड एज द प्लेजर ऑफ द इंडिविजुअल. तो जो इंसान को खुश करे वही वर्च्यू हो गया फॉर सोफिस्ट. As these two propositions are thus in fact only one principle, what Plato has said in refutation of the former provides also refutation for the later. तो जो knowledge is perception and then what is right for the individual is right, ये दोनों propositions जो है वो एक ही चीज की तरफ point out कर रहे हैं. तो क्योंकि प्लेटो ने एक को refute करा, दूसरा भी refute हो गया. The theory that virtue is pleasure has the same destructive influence upon the theory कि knowledge is perception. तो हमने जैसे ही बोला virtue is pleasure, जो इंसान को खुश करे वही virtue हो गया, वही correct हो गया. तो इट इज द सेम एज सेइंग नॉलेज इज परसेप्शन, एक दूसरे फ्रेज में हमने पुट कर दिया. तो जैसे हम बोल रहे हैं कि वर्च्यू इज प्लेजर, अगर प्लेटो ने वर्च्यू इज प्लेजर को डिनाई किया है तो प्लेटो ने नॉलेज इज परसेप्शन को भी डिनाई कर दिया है. प्लेटो के आर्ग्यूमेंट्स क्या रहते हैं? एज द sophistic theory of truth destroys the objectivity of truth, so the doctrine that virtue is the pleasure of the individual destroys the objectivity of the good. जब हमने बोला कि virtue is pleasure, तो वो good की objectivity को खत्म कर रहा है. जिस इंसान को जो खुश कर रहा है वही सही हो गया, वही virtue हो गया. तो कोई objective good नहीं बचा, गुड सब्जेक्टिव हो गया. हर इंसान के लिए उसको जो खुश करे, उसको जो सही लगे वही गुड बन गया उस इंसान के लिए. तो कोई भी चीज खुद में अच्छी नहीं है, वो अच्छी तब होगी जब इंसान को अच्छी लगेगी. अगर किसी की मदद करना किसी इंसान को बुरा लग रहा है, किसी इंसान को अच्छी नहीं लग रही, तो वो बैड हो गई. थिंग्स आर गुड ओनली फॉर मी एंड ओनली फॉर यू, और ओनली फॉर यू. There results an absolute moral relativity in which the idea of an objective standard of goodness totally disappears. This theory destroys the distinction between good and evil. Since the good is whatever the individual pleases, and since the pleasure of one individual is the displeasure of another, the same thing is both good and evil at the same time.
तो पहला हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ गुड हट गई, प्लेटो जो आर्ग्यूमेंट देता है। दूसरी चीज देखी कि एक ही चीज में गुड एंड इवल दोनों रिसाइड कर रहा है, क्योंकि जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो तुम्हारे लिए बुरी हो सकती है, जो तुम्हारे लिए अच्छी है वो मेरे लिए बुरी हो सकती है। तो एक ही चीज के अंदर गुड एंड इवल दोनों रिसाइड कर रहा है। तो दिस इज दैट गुड एंड इवल आर द सेम, वो अलग अलग है ही नहीं, फिर गुड एंड इवल अपोजिट नहीं, गुड एंड इवल सेम ही है। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो प्लेटो प्रोवाइड करता है कि प्लेजर जो है वो हमारे डिजायर्स का सेटिस्फैक्शन है। अब डिजायर सिर्फ हमारी फीलिंग्स है, तो मोरालिटी को हम फीलिंग्स के ऊपर दे रहे, हमारा जो इमोशन हुआ, हमारा जो फीलिंग हुई, वही हमारी मोरालिटी बन गई। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं हो सकती। मोरालिटी इंडिविजुअलिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, सब्जेक्टिव नहीं हो सकती। एक मॉरल कोड होना चाहिए जो एवरी मैन के ऊपर बाउंड कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। एक यूनिवर्सल रीजन के ऊपर मोरालिटी को फाउंड होना पड़ेगा। वो रीजन यूनिवर्सल है इन द सेंस कि वो रीजन हर जगह एक जैसा है, और अगर वो उसके ऊपर बेस्ड है तो मोरालिटी फिर हर जगह एक जैसी है। दिस इज द थर्ड वन। द फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो प्लेटो देता है टू डिसरिगार्ड द थ्योरी ऑफ द सोफिस्ट्स इज दैट the end of moral activity must fall within and not outside the moral act itself. Morality must have an intrinsic, not a merely extrinsic value. We must not do right for the sake of something else. We must do right because it is right. तो मोरालिटी की वैल्यू मोरालिटी के अंदर ही फॉल करनी चाहिए। हमें सही करना है नॉट बिकॉज इट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस या उसकी कोई और वैल्यू है, हमें सही सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि वो सही है, जस्ट बिकॉज इट इज राइट, इसी रीजन की वजह से हमें सही करना है। द सोफिस्टिक थ्योरी क्या प्लेस करती है मोरालिटी को, मोरालिटी के आउटसाइड कैसे प्लेस करती है कि अगर वो आपको मॉरल लगे तो वो मॉरल हो गई। तो मोरालिटी इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो मॉरल है, मोरालिटी इसलिए फॉलो करना है क्योंकि वो आपको हैप्पीनेस दे रही है। तो ये मोरालिटी को मोरालिटी के बाहर प्लेस कर रही है, यानी मोरालिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। हम सोफिस्ट के अकॉर्डिंग मोरालिटी को सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करें क्योंकि वो मॉरल है, इसलिए फॉलो करें क्योंकि वो हमें हैप्पीनेस दे रही है। लेकिन मोरालिटी का एंड किसी और चीज में नहीं होना चाहिए, उसका एंड हैप्पीनेस, प्लेजर या कुछ और नहीं होना चाहिए। मोरालिटी का सिर्फ यही एंड होना चाहिए कि वो खुद मोरालिटी है। इट शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। वर्च्यू देयरफॉर इज नॉट प्लेजर एनी मोर देन नॉलेज इज परसेप्शन। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है। लाइकवाइज जैसे कि नॉलेज जो है वो सिर्फ राइट ओपिनियन नहीं है, वर्च्यू सिर्फ राइट एक्शन नहीं है। राइट ओपिनियन जो है वो कई बार गलत ग्राउंड्स के ऊपर, गलत फाउंडेशंस के ऊपर हो सकता है, राइट एक्शन गलत ग्राउंड्स के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। ट्रू वर्च्यू वी मस्ट नॉट ओनली नो व्हाट इज राइट बट व्हाई इट इज राइट। तो ट्रू वर्च्यू तभी होगा जब हमें पता है कि कोई भी चीज सही है तो वो क्यों सही है। सिर्फ ये पता होना कि वो चीज सही है इज नॉट absolute. Why is the thing right and why the wrong is what is true virtue. Right, true virtue is thus right action proceeding from a rational comprehension of true values. तो true virtue तभी होगा जब हमने उस goodness या उस righteousness के पीछे rationality या reason को apply किया होगा कि क्यों कोई भी चीज right है तो वो क्यों है, the rationale behind it. Hence, there arises in Plato's philosophy a distinction between philosophic virtue and customary virtue. Philosophic virtue is founded upon reason. जो philosophic virtue है वो reason के ऊपर found होती है और principle को understand करती है। तो जो philosophical virtue है, जो प्लेटो की virtue है, वो right को सिर्फ इसलिए follow नहीं करती because it is right. It is following right because it knows why it is right. It is in fact action governed by principle. Customary virtue is right action proceeding from any other ground such as custom, habit, tradition. तो customary virtue मतलब कि सिर्फ वो एक ट्रेडिशन है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब भले ही वो एक्शन सही होगा लेकिन हम उस एक्शन को क्यों कर रहे हैं उसके ग्राउंड सही नहीं है। हम वो एक्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स ने बोल दिया करने के लिए, तो हम वो एक्शन कर रहे हैं।
तो हो सकता है कस्टमरी वर्च्यू के थ्रू हम एक्शन सही करें, लेकिन वो एक्शन सही क्यों कर रहा है, उसका ग्राउंड सही नहीं है। तो इफ मैंने सही एक्शन करा है वो सिर्फ इसलिए करा क्योंकि किसी और ने उसको बोल दिया करने के लिए। दिस इज द वर्च्यू ऑफ द ऑर्डिनरी और इन द रिस्पेक्टेबल पर्सन। इट इज वर्च्यू ऑफ बीज एंड ants who act as if rationally but without any understanding of what they are doing। तो जो कस्टमरी वर्च्यू है, प्लेटो उसको इक्वेट करता है विद द वर्च्यू ऑफ बीज एंड एंड्स। बीज एंड एंड्स अपना काम कर रहे हैं, पूरी रैशनैलिटी के साथ कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो द रीजन वाई दे आर डूइंग इट। इट इज द वर्च्यू ऑफ बीज एंड एंड्स हु एक्ट एज इफ रैशनली बट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई दे आर डूइंग इट। एंड प्लेटो ऑब्जर्व करता है, नो डाउट विद एन इंटेंशनल स्पाइस ऑफ ह्यूमर दैट सच पीपल मे इन द नेक्स्ट लाइफ फाइंड देमसेल्व्स बोर्न एज बीज एंड एंड्स। That if a person is doing right just because you know they have been told to do so, वो custom है, वो tradition है, सिर्फ इसलिए वो सही काम कर रहे हैं, then Plato with a sense of humor, एक taunt की तरह he tells that they will be born as bees and ants in the next life. So you can understand it is very kind of poetic and very kind of now this part of it बहुत कुछ similar है to the religion of Indian philosophy. Plato denies philosophic virtue not only to the masses of men but even to the best statesmen and politicians of Greece. कि philosophic virtue is very uncommon. So even the best statesmen do not possess philosophic virtue but only customary virtue. जैसे कि true virtue is virtue which knows what it is aiming. तो true virtue को पता है why it is true, why it is right. So knowledge of nature is of the highest aim becomes the chief question of ethics. कि हमारा highest aim क्या है, moral activity का aim क्या है, हम morality को क्यों follow कर रहे हैं, हमें क्यों कोई action, moral action करना है। The end of goodness is the good, what then is the good, what is the supreme good, the summum bonum, that is the supreme good. A note of warning is necessary before we enter upon the details of this problem. Plato frequently speaks of all moral activity aiming at and ending in happiness. With modern phrases ringing in our ears, we might easily suppose कि वो utilitarian है, जैसे कि utilitarian perspective which also we have discussed Jeremy Bentham का, not Jeremy Bentham only but others as well. Utilitarian perspective says कि it is right अगर वो maximum pleasure and minimum pain लेकर आता है तो। लेकिन Bentham and Mill, so it is distinguished by the fact that it places the end of morality in happiness. तो Bentham का जो utilitarianism है, तो वो ये state करते हैं कि कोई action moral होगा अगर वो maximum pleasure लेकर आ रहा है, maximum happiness लेकर आ रहा है और minimum avoidance of pain हो रहा है। लेकिन प्लेटो यूटिलिटेरियन नहीं था। प्लेटो का एंड गोल हैप्पीनेस जरूर था, but वो it is not like Bentham and Mill का utilitarianism. But the only difference is that whereas the sophistic identified virtue with the pleasure of the individual, Mill makes it the pleasure of the community. तो सोफिज्म और सोफिस्ट का जो प्लेजर था और मिल और बेंथम का जो प्लेजर है, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी डिफरेंट है। दोनों यूटिलिटेरियन थ्योरीज है, सोफिस्ट की भी एंड बेंथम एंड मिल की भी, बट दे आर डिफरेंट इन द सेंस कि सोफिस्ट की यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है वो इंडिविजुअल की को फोकस कर रही है और मिल की थ्योरी जो है वो कम्युनिटी को फोकस कर रही है। दैट प्रैक्टिस राइट जो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को लेकर आती है ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। In practice, of course, this makes a tremendous difference, but the principle is equally objectionable because, like the sophist theory, it found morality upon mere feeling. तो ये थ्योरी भी इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्योंकि सिर्फ एक फीलिंग, एक इमोशन, हैप्पीनेस या प्लेजर के ऊपर मोरालिटी को बेस कर रही है। तो मोरालिटी को मोरालिटी के बाहर प्लेस किया जा रहा है, मोरालिटी का एंड हैप्पीनेस को बोलकर। तो इसीलिए डिफरेंस क्या है। अब प्लेटो बोल तो रहा है, प्लेटो के लिए भी एंड इज हैप्पीनेस, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ मिल एंड बेंथम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि दे आर सेइंग वी हैव टू डू अ मॉरल एक्ट बिकॉज it brings happiness to the greatest number of people, it brings greatest happiness to the greatest number of people, which according to Plato is wrong. कि we should not do any moral act because it is bringing happiness or stuff like that. Pleasure is the satisfaction of one's desire, whether they are the fact is that
what Mill calls happiness, Plato would have called pleasure. Pleasure is the satisfaction of one desire, where they are noble or ignoble. Then what is happiness? It can be only defined as the general harmonious well-being of life. Only that man is happy whose soul is in the state it ought to be in. Only in fact the just, the good, and the moral man. Happiness has nothing to do with pleasure. Happiness और pleasure तो अलग चीज है. Happiness मतलब सोल को जिस स्टेट में होना चाहिए हैप्पी उसी स्टेट में है तो सोल इज हैप्पी. लेकिन pleasure मतलब satisfaction. If you would conceive an absolutely just and upright man, who was yet weighed down with every possible misery and disaster, in whose life pleasure had not part, such a man would still be absolutely happy. तो अगर हम एक जस्ट अपराइट एकदम करेक्ट राइटियस मैन से मिले, जो कि ही वॉज राइट, द मैन वॉज राइट, बट स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत मिजरीज, डिजास्टर्स उसके लाइफ में आई, प्लेजर का कोई पार्टनर था, फिर भी वो हैप्पी हो सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज merely another name for summum bonum, the supreme good. The supreme good. Summum bonum is happiness. Plato is not telling us anything about it. He is merely giving it a new name, and we are still left to wonder what is this summum bonum, what is happiness. Plato's answer is indeed his whole ethics is but an application of the theory of ideas, but here we can distinguish two different and to some extent inconsistent strains of thought which exist side by side in Plato and perpetually struggle for the mastery. Both views depend upon the theory of ideas. In the first place, the idea in Plato's philosophy is the sole reality. Now, अब हम दो चीज़ों को यहाँ पर now Plato's answer is indeed his whole ethics is but an application of the theory of ideas. तो जब प्लेटो हैप्पीनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज अगेन थ्योरी ऑफ आइडियाज का रोल जरूर प्ले हो रहा है. We can distinguish two different and to some extent inconsistent strains of thought which exist side by side in Plato. दो यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडियाज से हम हैप्पीनेस को एक्सप्लेन तो करें, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है. बोथ व्यूज डिपेंड अपॉन द थ्योरी ऑफ आइडियाज. पहले प्लेस में the idea in Plato's philosophy is the sole reality. तो idea is the only absolute reality, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेटो के केस में. तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस जो है वो अनरियल है, वो नॉट बीइंग है, एंड सिर्फ आइडियाज को क्लॉक करता है, आइडियाज के विजन को क्लॉक करता है एंड फेड करता है. मैटर इज वॉट विच obstructs द फ्री एक्टिविटी ऑफ द आइडिया. सेंस ऑब्जेक्ट्स हाइड द आइडिया फ्रॉम आवर व्यू, देयरफॉर द वर्ल्ड ऑफ सेंस इज होली इविल. तो सेंस का जो वर्ल्ड है वो इविल है, जो हमें रियलिटी तक पहुंचने नहीं देता है, रियलिटी के विजन को क्लॉक करता है, ब्लर करता है. मैटर जो है, मटीरियल चीजें जो है. True virtue must consist in flying from the world of sense and retiring from the affairs of the world and even from the beauty of the senses into the calm of philosophic contemplation. And if this were all philosophy, the knowledge of the ideas would be the sole constituent of the summum bonum. But it is possible to regard sense object in another light. They are after all copies of the ideas. They are therefore a manifestation and revelation of the ideal world. Hence Plato is compelled by his thought to allow a certain value to the world of sense, its affairs and its beauty. तो यहीं पर बात निकल के क्रिटिसिज्म आ जाती है कि एक तरफ प्लेटो बोल रहा है कि सेंस जो है वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर एब्सोल्युटली अनरियल, आइडिया को क्लॉक करते हैं, विजन को ब्लर करते हैं, स्टफ लाइक दैट. लेकिन दूसरी तरफ प्लेटो हिमसेल्फ इज सेइंग कि सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीज ऑफ द आइडियाज. तो अगर वो आइडियाज की ही कॉपीज हैं, देन हाउ दे आर सो अगेंस्ट द आइडियाज. यहाँ पर वो इनकंसिस्टेंसी निकल के आ जाती है. The result of this inconsistency is at any rate that Plato remains broad and human. He does not on the one hand preach a purely selfish retirement into philosophy or a narrow ascetic deal. He does not on the other hand adopt a low utilitarian view of life, allowing value only to that which is practical. He remains true to the Greek ideal of life as a harmonious play of all the faculties in which no one part of man is overdeveloped at the expenses of others. The result is that Plato's summum bonum is not a single end. अब हम फाइनली उसको आंसर पे आ रहे कि व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर प्लेटो. तो प्लेटो का जो अगर वो बोल रहा है कि हर एक्टिविटी का एंड हैप्पीनेस है, तो वो सिंगल एंड नहीं है, वो 4 पार्ट्स में एंड को एक्सप्लेन कर रहा है. सबसे पहले द नॉलेज ऑफ द आइडियाज आर फर्स्ट एंड चीफ ऑफ ऑल इज नॉलेज ऑफ द आइडियाज एज दे आर इन देमसेल्व्स फिलॉसफी. Second end है contemplation of ideas as they reveal themselves in the world of sense, the love and appreciation of all the beautiful, colored, ordered and harmonious. Thirdly, the cultivation of special scientific interest, and fourthly, indulgence in pure, refined and innocent pleasures of senses, excluding of course whatever is base and evil. So this is what the 4 parts. This is what the summum bonum is. The summum bonum is of 4 parts.
पहला है फिलोसफी की नॉलेज, दूसरा आइडियाज का कंटेम्पलेशन एंड कैसे हम एंड द वैल्यू ऑफ इट, लव ऑफ इट, अप्रिसिएशन ऑफ इट. थर्ड इज की स्पेशल साइंसेस एंड आर्ट्स का कल्टिवेशन एंड नॉलेज. एंड फोर्थली इज इनोसेंट प्लेजर्स मिलना. इनोसेंट प्लेजर्स इन द सेंस कि वो इविल नहीं है, वो बुरे नहीं है. Plato had also a specific doctrine of virtue, as already stated. He distinguished between philosophic and customary virtue and attached absolute value only to the formal. तो सिर्फ philosophic virtue को प्लेटो ने एक्सेप्ट किया है, customary virtue को एक्सेप्ट नहीं किया है. Plato saw that man cannot rise at one bound to the pinnacles of rational virtue, कि man बिल्कुल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रैशनल वर्च्यू या फिलोसफिक वर्च्यू नहीं पहुंच सकता है, उसको कस्टमरी वर्च्यू से पास थ्रू होना पड़ेगा. तो एक मैन जिसमें रीजन अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, क्योंकि रीजन ऑलरेडी मैन में प्रेजेंट है, उसमें सबसे पहले गुड हैबिट्स, गुड कस्टम्स आना पड़ेगा और उसके बाद ही वो रीजन को अवेकन कर सकता है. सोक्रेटिस ने बोला है कि वर्च्यू इज वन. प्लेटो ने भी ये अडॉप्ट किया है, लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ा सा डिफर हो जाता है इसके ऊपर. So he did not surrender the unity of virtue altogether, but believed that its unity is compatible with its plurality. कि virtue सिर्फ एक नहीं है, उसमें plurality exist करती है. 4 cardinal virtue प्लेटो बात करता है 4 cardinal virtues के बारे में, unlike Socrates जो कि एक virtue की बात करता है. 3 of these correspond to the 3 parts of the soul: the reason, the noble and the ignoble half. And the 4th virtue is the unity of all these 3 parts. All 3 parts. The virtue of reason is wisdom. Noble half का virtue is mortal soul courage of the noble half of the mortal soul courage. The ignoble appetites, temperance or self control, in which the passions allow themselves to be governed by reason. तो 4 virtues जो प्लेटो बात करता है. The first virtue is wisdom. The second virtue is courage. The third virtue is self control and the fourth virtue is justice. Now in the previous video हमने इन 4 virtues के बारे में बात की है, how Plato explains these 4 virtues and into the practical life and stuff. Justice means proportion and harmony and occurs to the soul when all 3 parts perform their functions and cooperate with each other. तो Plato के Republic में we have discussed the 4 virtues of Plato. Following Zeller, we may add to this account of the virtues some of Plato's views upon the details of life. At first, his opinion of women in marriage. तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आ जाता है, नॉट मच अंडरस्टैंडिंग, बहुत फिलोसफिकल पार्ट नहीं है. प्लेटो जो है वो वुमेन को लोअर एंड इन्फीरियर मानता था मेन से, लेकिन कुछ ओरिजिनल नहीं है वुमेन को लेकर, मैरिज को लेकर. मोर ओवर द मॉडर्न व्यू ऑफ अ वुमेन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैन इज पोजेसिंग दो स्पेशल वर्च्यूज ऑफ वुमेननेस व्हिच इज मैन लैक्स इज क्वाइट एलियन टू प्लेटो. तो प्लेटो बेसिकली कोई नया व्यू नहीं लेकर आता है वुमेन को लेकर, वुमेन को इन्फीरियर एंड लोअर बीइंग्स ही मानता है. The only specific difference between the sexes is the physical difference. For Plato, spiritually वो same है, women inferior है, physically भी inferior है. Plato जो है वो exclude नहीं करेगा women को, क्योंकि spiritually women and men are same, but physical difference और physical difference में women are inferior. Spiritually वो same है, इसलिए Plato does not deny education to women. He would educate women in the same way जैसे वो men को educate कर रहा है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज, कुछ बर्डन्स रहेंगे. मैरिज को लेकर सेम प्रिंसिपल, क्योंकि विमेन जो है वो मैन की इक्वल नहीं है, काउंटर पार्ट नहीं है, इक्वल काउंटर पार्ट नहीं है. तो कोई कंपेनियन की तरह नहीं देखा जाता कि मैरिज में कैसे दो इक्वल पार्ट्स मिलके कंपेनियनशिप बना रहे हैं. तो व्यू ऑफ मैरिज इज द प्रोपोगेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो प्लेटो के लिए मैरिज का सोल पर्पस है चिल्ड्रन होना, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्टिव साइकिल को चलाते रहना. तो एक मैन का नेचुरल कंपेनियन या अदर हाफ जैसे बोला जाता है, प्लेटो के अकॉर्डिंग वो वुमेन नहीं है, वो एक मैन ही है. तो फ्रेंडशिप का जो आइडियल है वो प्लेटो के लिए इज मैन फ्रेंड विथ मैन, नॉट विथ अ वुमेन. स्लेवरी को प्लेटो ने डिनाउंस नहीं किया है, ऐसे सपोर्ट भी नहीं किया है, लेकिन ऐसे डिनाउंस नहीं किया है, बिकॉज ही थिंक्स दैट it is so obviously right that it needs no justification. All that can be said to his credit is that he demands humane and just and firm and unsentimental treatment of women. दो firm and unsentimental मतलब कि प्लेटो अगेन वो क्योंकि स्लेवरी को डिनाउंस नहीं कर रहा है, बस वो ये कह रहा है कि
स्लेव्स को ट्रीटमेंट देना चाहिए विथ ह्यूमैनिटी, विथ जस्टिस, लेकिन अगेन फर्म एंड अनसेंटिमेंटल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो स्लेव्स को लेकर भी जो मतलब हम बेसिकली एथिकल पोजीशंस ऑफ प्लेटो को डिस्कस करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि विमेन को लेकर, मैरिज को लेकर, स्लेव्स को लेकर कोई बहुत डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। The common view of this time was that one ought to do good to one's friends and evil to one's enemies. This Plato expressly repudiates. It can never be good, he thinks, to do evil. तो जैसे कि उस समय का ग्रीक थॉट था कि फ्रेंड्स के साथ अच्छा करो, एनिमीज के साथ बुरा करो, प्लेटो इस एक चीज में कंप्लीटली डिनाई करता था कि किसी के भी साथ बुरा करना इज नॉट करेक्ट, किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, भले ही वो एनिमी हो उसके साथ भी अच्छा बिहेवियर रखो। सो दिस वाज द एथिक्स ऑफ द प्लेटो।